दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। What do you understand by the perception versus e-perception funda? What is the difference? Is there a difference first of all? For example, in PPDT we call it picture perception and discussion test. They're using the word perception here. In TAT we call it thematic a-perception test. Now what is the difference? Why is this word a-perception? Does it depend upon perception? ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है। जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे, आप कंसेप्चुअली सही नहीं हो सकते हैं। व्हाट इज परसेप्शन, व्हाट इज ए परसेप्शन? आप किसी चीज को देखते हैं, यू सी समथिंग, यू नोटिस अबाउट इट, you notice the details, you notice the color, you notice the height, you notice the age, you notice the environment, the details which are available, the things that you happen to notice is perception. Now, how deeply are you able to notice the things? That's why there is an insistence that you please look at the picture for some time. 30 seconds is exclusively given so that you look, you observe, and you notice. पर हमारी जो माइंड सेट है वो ये हो गई है कि भाई पिक्चर देखती स्टोरी दिमाग में बनाने लगो, आप डिटेल्स देखेंगे नहीं। वहीं पे सबसे बड़ी गलती वहीं हो जाती। आप 30 सेकेंड्स को प्रॉपरली यूज करने के बजाय यू जस्ट यूज 5 सेकेंड्स ऑफ इट। Noticing and understanding. When you look at a person, when you look at a situation, when you look at a market, when you look at a issue, what do you notice? Noticing and understanding is perception. Noticing and understanding is a variable term. It will vary from person to person to person. Somebody might notice minutest of the details. Of course, his observation power is more than you. Somebody is not noticing anything. It means his mind is occupied. His mind is somewhere else. Eyes are on the picture, mind is somewhere else. Mostly in this case, mind is making a story. Don't do that. What is a perception then? So, a perception broadly, if you go by the Google definition also, it will say what thoughts come to your mind. Suppose you're going on a road, you see a beggar. You see somebody in a very penurious state. आपको कोई बहुत गरीब व्यक्ति दिख रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी हालत खराब है, मे बी ही इज इन अ वेरी पुअर स्टेट, वो सब आपको समझ में आ रहा है, राइट? नाउ व्हाट थॉट्स कम टू योर माइंड? फर्स्ट थॉट दैट मे कम टू योर माइंड, चलो ठीक है, गरीब है, कोई बात नहीं, you are not ready to do anything for him, but you feel for him. This part will be called as sympathy. So you're sympathizing with him. That nothing wrong in it. No, that's how. Don't take it wrong or right. Anybody who is doing is wrong or right. Another person, he maybe takes out 100 rupees note, 200 rupees note, whatever, gives it to him. Now it gives him a relief. It gives him a sense of humanity, you may say. He feels good about it. That is also correct. There are some people, a third person might be saying, why is this beggar here? He's spoiling this, environment. He's creating the ruckus, and maybe he's a thief, or maybe he's this, and he might misbehave with him. So there are three people and three ways of dealing with that situation. But one thing is for sure, everybody will take him as a beggar. Everybody will understand he is in need of money. Probably he has no work, no shelter. One person feels for him and moves on. Another person feels deeper, does something, and then goes. Third person is suspicious.
He's suspecting him. 3 line of thoughts, 3 A perceptions, 1 perception. Are you getting my point now? आप क्या देखते हैं, आपको क्या समझ में आता है, वो परसेप्शन है. अब क्या किसी का ए परसेप्शन कैन इट बी बेटर विद अ पुअर परसेप्शन? मतलब आपको चीज देखने में समझ नहीं आई, यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. कैन योर परसेप्शन बी बेटर? डेफिनेटली नो, कांट बी बेटर. बिकॉज आपको जब समझे में नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो कैसे अच्छा हो जाएगा आपका ये परसेप्शन? द बेसिक इंग्रेडिएंट इज मिसिंग. नो, आप इस बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले देखें. ऐसा ना हो कि आप कोई डिटेल मिस कर दिए हो. मूड क्या है, जो भी आपका हीरो है उस पिक्चर में, उसका मूड क्या है, वो आपको समझ ही नहीं आया है. मूड है उसका एम्पैथी का, आप बना दिए सैडनेस का. पिक्चर है एसेंस ऑफ सर्वाइवल पे, और आपने बना दिया एसेंस ऑफ डिफाइंस पे. आपके जीवन में भी क्या मूड नहीं पकड़ पाते हैं? आप इसको पॉलिटिकल एरिना में लेके जाइए, परसेप्शन वर्सेस ए परसेप्शन को. आपको तब भी समझ में आएगा कि व्हाट इज परसेप्शन वर्सेस ए परसेप्शन. अब जैसे कि कई नेता हैं, वो लोग फ्रीबीज बांट रहे हैं, आप सब बांट रहे हैं. बट एक समय था जब ऐसा नहीं था. तो ये किसने शुरू किया? तो एक महानुभाव हैं, श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल साहब. फ्री में बिजली दूंगा, फ्री में पानी दूंगा. क्यों क्यों देंगे आप फ्री में बिजली? ये सवाल नहीं आया ना, आप किसी के जहन में नहीं आया. सबने कहा फ्री में बिजली, फ्री में पानी. बना दिया उसको चीफ मिनिस्टर. जो उस बंदे ने 10 साल में दिल्ली की दुर्दशा की, मुझे लगता है अनदर 10 years विल बी रिक्वायर्ड टू रिकवर एंड कम बैक टू द प्लेस वी वर. तो अब आपका ए परसेप्शन, जो पब्लिक मास जनरेशन का, जो आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल परसीव, ओ माय गॉड एवरीथिंग इज फ्री, व्हाट एल्स. अगर आप यही बात मान लीजिए किसी वेस्टर्न कंट्री में जाके बोलते हैं, अब जर्मनी में जाएं और जर्मनी में आप कोई नेता बोले कि मैं तुम्हें फ्री में बिजली दूंगा और फ्री में पानी दूंगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर विल नॉट टेक इट. दे विल से व्हाई? डोंट गिव मी फ्री, फ्रॉम वेयर विल यू गेट इट? अब आप समझ रहे हैं, ये परसेप्शन हैज अ वाइडर रेंज ऑल्सो. इंडिया में आप फ्री भी बांटेंगे तो लोग जनरली कहेंगे कि मेरा हक है. जो कंट्रीज इवॉल्व हैं and which are what you call as developed, they will ask from where, because the curiosity level is high, the intellectual capacity is much superior, so they will ask from where will you give. And of course, if you're giving, then how are you generating the fund? That should be the question. It shouldn't happen कि आप जो है हमारा ही पैसा हम ही को रिटर्न मार रहे हैं और इसको आप वेलफेयर दिखा रहे हैं. तो ये तो सही नहीं है. या एक खास वर्ग से आप पैसा ले रहे हैं और एक खास वर्ग को आप दे रहे हैं, ये भी गलत है. कई ऐसी एडवांस कंट्री जहां पे हर चीज फ्री है, बट देन एवरीवन इज पेइंग आल्सो. तो ये इनइक्वालिटी क्रिएशन, ये चीप पॉलिटिक्स, ये परसेप्शन, उनको पता था, ये परसीव्ड कि इफ आई गिव इट फ्री, पीपल विल बाय इट. पीपल बट नाउ एवरीवन इज गिविंग फ्री. आई डोंट नो हाउ विल दिस कंट्री ग्रो. आई हैव माय डाउट्स. ये फ्री करने से तो नहीं होगा ना. फ्री कैसे होगा? आपको फ्री एजुकेशन करना चाहिए, फ्री हॉस्पिटल्स करने चाहिए. आप यू टेक केयर ऑफ द एजुकेशन, you take care of the health, but let people earn. So you take care of the infrastructure, you build such opportunities where people get. अब बिहार में, मैं बिहारी आदमी हूँ, अब बिहार में जाइएगा आपको काम ही नहीं मिलेगा, है ही नहीं काम. देयर इज नो जॉब. गवर्नमेंट कितना जॉब देगी? ये सब बोल रहे हैं कि हम तुम सबको जॉब दे दें. कहाँ से दे दोगे जॉब? गवर्नमेंट हैज अ कैपेसिटी. नो, यू कांट
give job to everyone. It's not possible. तो क्या करेंगे आप? फालतू का जॉब क्रिएट करेंगे, फालतू का नौकरी देंगे और उसका पेमेंट देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप लोन लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कहाँ चला जाएगा? छोड़िए, मेरा टॉपिक जो है थोड़ा पॉलिटिकल हो गया। परसेप्शन वर्सेस ये परसेप्शन में समझे कि नहीं? आपका परसेप्शन आपके ये परसेप्शन को डिफाइन करेगा, ये चीज़ समझ जाइए। Perception should be good for a perception to be better. How it will be good? Please invest time in understanding the picture. आप जल्दबाजी मत कीजिए। क्यों जल्दी कर रहे हैं? आपको बोल रहा है 30 सेकंड देखिए, आप लगे हुए हैं कुछ और करने में। एक-एक चीज़ पकड़िए। एक-एक चीज़ का, एक छोटी-सी लाइन का, एक स्केच का, एक छोटे से एरो का भी बड़ा मतलब है। ऐसे ही नहीं पिक्चर बना के रख दिया है उसने। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत सारे नकली गुरु आ गए, मैं उनको जब वीडियो देखता हूँ मेरे को बहुत अजीब-सा लगता है कि ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं अभी देख रहा था, एक ऐसे ही अनपढ़-सा आदमी जाहिल जैसा कुछ बोल रहा है। कुछ लेना-देना नहीं। एनालाइज़ कर रहा है बैठ के स्टोरी। रियली? अब वो देख रहा हूँ उसपे लाइक इतना है, तो कमेंट भी आ रहा है। अरे भाई! आपको समझ नहीं आ रहा है वो मूर्ख बना रहा है। अगेन आपका परसेप्शन का प्रॉब्लम, आपको दिख जाएगा। उसकी शक्ल देख के आपको समझ में आ जाएगा ये गधा है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हुल्लड़ मुरादाबादी का एक बड़ा खूबसूरत जो शेर है, 2 लाइनें हैं कि आईना उनको दिखाने की ज़रूरत क्या थी? और वो है बंदर, ये बताने की ज़रूरत क्या थी? आप उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे उसको ना बोलने का ढंग है, ना खड़े होने का ढंग है। उसके चेहरे पे वो रौब ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। यानी कि जो बात आती है नॉलेज से, जो बात आती है डीप रूटेड एक्सपीरियंस से। कोई भी मुँह उठा के ये अनपढ़ सा आदमी लग रहा था, बोलने का शऊर नहीं, एनालाइज़ कर रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस गाय इज़ एनालाइजिंग एंड ही इज़ नॉट एबल टू जस्ट कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी और फटाफट 4-5 ऑयल क्यों रट लिया, खट, 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 खट। आप लोग क्यों ऐसे मूर्खों को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप इसको सुनेंगे और आप पे असर नहीं होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत फ्रेजाइल है। Your subconscious mind is extremely fragile. Don't let these impressions come to you. आप इनका इनकमिंग बंद कीजिए। If they come to you, they might stick to you. That's power of a subconscious mind. That if something a garbage comes, it'll stay, and what will be produced out of it will be another garbage. You allowing it to come and seep into your subconscious itself is wrong. You need to work on this. Block such things. Because your thought process is what you feed. This feed is ruining your psychology. And then you will struggle with the question, why am I not getting recommended? Because your psychology is ruptured. How will you be recommended? You're talking, you're listening garbage, you're producing garbage, but probably you do not actually feel that way. But because of this influence, because of this unwanted, information, it is coming out that way. So that's all. Let me know how did you like this video. Support me, please. I'm 100% sure my content is very genuine. I don't listen, I don't copy. It is all based on my own knowledge, my training at DIPR, my experience of interviews at AFSB and CGSB, and my teaching of more than 4,000 students. So I need your support. Please subscribe to this channel. Please share it. Let the right information spread. And I need your support for that. Thank you and Jai Hind.